Dear students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, today we will discuss Power Plant Economics Part 2. This is our 37th lecture. So, these are the contents which we discussed today: the cost of electrical energy and the various factors on which the cost of electrical energy depends. Depreciation, under the depreciation we will discuss what is depreciation, what are the various methods to calculate the depreciation, then operational cost, and then tariff of electrical energy, right. So, we will discuss these contents. So, first of all we will discuss cost of electrical energy. Dear friends, as you know that electricity is not available at free of cost. So, we have to pay some charge for it. So, we must know what are the various factors on which cost of electrical energy depends. Right. Whenever we want to calculate cost of electrical energy, we must know that cost of electrical energy depends on whether we are using an entire new power system that has to be set up, or we are using an existing system that has to be replaced, or an extension has to be provided to the existing system. So, out of these three, which system we are using? These three systems hai. And the cost of electrical energy includes two type of cost. One is capital cost, other is operational cost. In the capital cost, we can say initial cost, interest, depreciation cost, taxes, insurance, etc. In the operational cost, we can discuss fuel cost, operational, labor cost, maintenance cost, supplies, supervision, operating taxes, etc. So, major part of the cost are these two costs. So, we will discuss all these. So, initially, first of all, we will discuss initial cost. The initial cost of a power station includes the land cost, building cost, equipment cost, and installation cost, and overhead charges. So, these 5 cost includes the initial cost, right. Now, overhead charges, what is the overhead charges? So, overhead charges include the transportation cost, stores, storekeeper charges, interest during construction, etc. Now, to reduce the cost of building, it is desirable to eliminate the superstructure over the boiler house and as far as possible on turbine house also. मीन अब देखिए दो कंडीशन है यहाँ पर कि एक तो सुपर स्ट्रक्चर एलिमिनेट करना है आपने, और दूसरा क्या है कि जिस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ना बनाया जाए. तो इससे क्या होगा, बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी. द कॉस्ट ऑन इक्विपमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग यूनिट सिस्टम वेयर वन बॉयलर इज यूज्ड फॉर वन टर्बो जनरेटर, राइट. ऑल्सो by simplifying the piping system and elimination of duplicate systems such as steam header and boiler feed heaters, the cost can be further reduced by eliminating duplicate or standby auxiliaries, right. When the power plant is not situated in the proximity of the load served, the cost of primary distribution system will be a part of initial investment. Means कि जहाँ पर यूज़ होना है पावर को, अगर उसके आसपास पावर प्लांट नहीं है, आपने रिमोट एरिया में पावर प्लांट को इंस्टॉल किया हुआ है, सो रिमोट एरिया में इंस्टॉल करने पर क्या होगा कि पावर प्लांट से और यूज़ पॉइंट तक जो आप सिस्टम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप यूज़ करेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कॉस्ट भी इनिशियल कॉस्ट में ऐड होगी. ठीक है. इसके साथ साथ क्या है कि यू हैव टू डिज़ाइन योर सिस्टम एज पर एफिशिएंसी बेस. ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी बेस पर आपने डिज़ाइन करना है सिस्टम को. इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न क्या मिल रहा है. सो कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी बिजनेस है, एवरी बिजनेस रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, राइट. और ये मनी कहाँ से आएगा? दिस मनी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू लोन, थ्रू बॉन्ड्स और थ्रू शेयर्स, और समटाइम्स बिजनेसमैन और ओनर give the money from his own pocket, right, on interest. अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बोरोड एंड मनी रिटर्न. सो जितना मनी बोरो किया जाता है हमेशा उससे ज़्यादा रिटर्न किया जाता है, और वो जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट, राइट. इंटरेस्ट में बी चार्ज एज इट सिंपल रेट ऑन एनुअल बेस,
और समटाइम्स इट मे बी कंपाउंड इंटरेस्ट एज जनरल मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर चार्जिंग, राइट। सो अभी होता क्या है कि इवन इफ ओनर इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, राइट, ही चार्ज सम इंटरेस्ट बिकॉज ही थिंक कि इस पैसे को अगर मैं बैंक में एफडी कर देता, फिक्स डिपॉजिट करता, तो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता। सो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उतना ही इंटरेस्ट दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं डेप्रिसिएशन के। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि इट इज़ ए मेजर ऑफ वियरिंग आउट, कंजप्शन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलीसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंज। मतलब क्या है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि कॉस्ट में कमी आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने आज एक कार परचेज की, लेट से 10 लाख रुपीज़ की, आफ्टर 1 ईयर उस कार की कॉस्ट 10 लाख नहीं होगी जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसी कार कुछ कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी। वो जो डिफरेंस आया ना कॉस्ट में, दैट इज़ नॉन एज डेप्रिसिएशन। दैट डिफरेंस, ये जो हमने वहाँ पर पॉइंट लिखे, दैट डिफरेंस मे बी ड्यू टू यूज़, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलीसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंजेस, तो किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन की एक कॉस्ट एक डिसाइड की जाती है, एंड डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चेंज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशेबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। इट इंक्लूड अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ इज प्रीडिटरमाइंड। मीन्स जैसे आप कोई भी प्लांट आपने लगाया, कोई भी मशीनरी आपने लगाई, हम ये कहते हैं कि इस प्लांट या इस मशीनरी की टेंटेटिव कॉस्ट है लेट से 10 ईयर्स। आज 10 लाख रुपीज़ की मशीनरी है, 10 ईयर्स के बाद ये स्क्रैप में जाएगा और स्क्रैप में जाएगी 20,000 की, इट इज़ एक्सपेक्टेशन। सो 10 लाख में से 20,000 गया, 9,80,000 रह गया। उस 9,80,000 को 10 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो देयर में भी डिफरेंट मेथड्स विच वी विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट ये जो 9,80,000 है, दिस इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, राइट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? टू कैलकुलेट प्रॉपर प्रॉफिट, to show the assets at its reasonable value, right, to maintain the original monetary investment of assets intact, provision of depreciation result in some incidental advantages also, to provide for replacement of an assets, and depreciation is permitted to be deducted from profit for tax purpose, right. These are the objective. Now what are the causes of depreciation? Though I have already discussed, I have already told that may be due to use, due to passage of time, due to technological changes. So there are main two causes, internal and external causes. So internal causes includes wear and tear, disuse, maintenance, change in production, restriction of production, reduced demand, technical progress and depletion, etc. And if we are talking about external cause, it may be obsolescence and afflux ion of time. So though there are so many methods to calculate depreciation, but most famous method are these 4 methods which we discuss here: straight line method, percentage method, sinking fund method and unit method. So these 4 methods are used to calculate the depreciation amount. First of all, straight line method. See, straight line बिल्कुल सीधी लाइन, मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम वर्सेज अमाउंट का, तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट इज़ इन इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड मेथड, ये सबसे आसान है मेथड है. एंड द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट और एंटरप्राइज इज़ फर्स्ट असेस्ड एंड द रेजिडुअल और साल्वेज वैल्यू ऑफ सेम आफ्टर एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लेट से किसी मशीनरी की लाइफ है 10 ईयर्स, राइट. तो आपने इनिशियली आज हम परचेज करते हैं 10 लाख की, आफ्टर 10 ईयर्स इसकी क्या कॉस्ट होगी, इट विल बी स्क्रैप लेट से, तो स्क्रैप में उसकी कॉस्ट क्या होगी, लेट से 20,000. सो डिफरेंस आ गया 9,80,000 का. सो ये जो 9,80,000 है ये 10 ईयर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है. दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट. सो द साल्वेज वैल्यू इज डिडक्टेड, ये लिखा हुआ है द साल्वेज वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट एंड बैलेंस इज डिवाइडेड बाय द लाइफ एज असेस्ड इन ईयर्स, राइट. Thus, the annual value of decrease in cost of equipment is found and is set aside as depreciation annually from income. Means ये जो मैंने बताया 9,80,000 है, तो 10 ईयर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, 98,000 पर ईयर आ गया. सो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितनी भी इनकम हो रही है, उसमें से 98,000 डेप्रिसिएशन के नाम के माइनस कर दिए जाएंगे, रेस्ट इज द प्रॉफिट. Thus,
rate of depreciation is uniform throughout the life of equipment. By the time the equipment has lived out its useful life, the amount equivalent to its net cost is accumulated, which can be utilized for replacement of the plant or that machinery. मीन्स 10 साल का जब हमें नई मशीन परचेज करनी होगी तो हमारे पास 9,80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 20,000 10 लाख अवेलेबल होंगे। उस 10 लाख से हम क्या कर सकते हैं, नई मशीन परचेज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। जब हम बात करें स्ट्रेट लाइन के, डिसएडवांटेज क्या है कि 10 साल का तो मुझे नहीं पता उस मशीन की कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है। और डिसएडवांटेज क्या है, एक और डिसएडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज एक और ये है कि ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं हर साल पैसा, इसको बैंक में जब हम रखते हैं, एफडी करते हैं, सो उसका इंटरेस्ट पार्ट को हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, राइट। सो नेक्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड। इन द परसेंटेज मेथड, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इज टेकन इनटू अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन and the amount of depreciation calculated upon actual residual value for each year. It is thus reduced for successive years. What is it mean? It means जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 10 लाख रुपीज़ कॉस्ट थी इनिशियली, स्क्रैप कॉस्ट 10 ईयर्स के बाद 20,000 होगी, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 9,80,000 विच वी हैव टू रिकवर। नाउ व्हाट हैपेंड कि हम परसेंटेज बेस कर देते हैं कि लेट से जो 9,80,000 है इसमें से 20% फर्स्ट 2 ईयर्स में ले लेना है और 20% नेक्स्ट 3 ईयर में लेना है, देन 20% नेक्स्ट 2.5 ईयर में, देन 20% नेक्स्ट 2.5 ईयर में। इस तरीके से कर सकते हैं। या कोई और मेथड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 10% फर्स्ट ईयर में, या 15% फर्स्ट ईयर में, 10% सेकेंड ईयर में, 10% थर्ड ईयर में। सो इस तरीके से परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट क्या होगा कि जब मशीन नई है एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, सो उस समय प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन अमाउंट उसका निकाल सकें, रख सकें, राइट। नेक्स्ट वन इज सिंकिंग फंड मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंसेप्शन दैट द एनुअल यूनिफॉर्म डिडक्शन फ्रॉम द इनकम फॉर डेप्रिसिएशन विल एक्यूमुलेट टू द कैपिटल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्लांट और इक्विपमेंट, राइट। इन दिस मेथड द अमाउंट सेट असाइड पर ईयर कंसिस्ट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन ऑल इंस्टॉलमेंट। सो इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको भी कैलकुलेट किया जा रहा है। देखिए जैसे हम लिखा ए इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय 1 + i रेज़ टू पावर n - 1 आउटसाइड द ब्रैकेट, राइट। इस टू टोटल को मल्टीप्लाई किया p - s से। अब देखिए इन दिस व्हाट इज आई, यू कैन से आई इज द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट कैपिटल, कि जो हमने कैपिटल लगाई है, जैसे मैंने कहा कि हमने मशीनरी परचेज की 10 लाख रुपीज़ की, राइट। अब वो 10 लाख रुपीज़ कहाँ से आया? इन मोस्ट ऑफ द केस वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। सो बैंक से जो 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया, उस 10 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। सो यहाँ पर उस इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट किया गया है। ए इज़ द अमाउंट सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम फॉर n ईयर्स। दिस इज़ अ ए कि हर साल कितना पैसा हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना है। अगर हमने n ईयर्स माने, लेट से n मीन्स 10 ईयर्स माने। n इज़ द लाइफ ऑफ द प्लांट, जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करें उसमें इसको हमने 10 ईयर लिया। एस इज़ द साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्लांट लाइफ, मीन्स स्क्रैप वैल्यू यू कैन से विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 जो हमने अभी कहा था आपसे। एंड पी इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो पी माइनस एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, राइट। इसको मल्टीप्लाई किया इस सारे से, इंटरेस्ट डिवाइड बाय दिस ऑल दिस। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट एनुअल अमाउंट विच वी हैव डिसाइडेड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज यूनिट मेथड, राइट। अब व्हाट इज यूनिट मेथड? इन दिस मेथड सम फैक्टर इज टेकन एज स्टैंडर्ड वन एंड डेप्रिसिएशन इज मेजर्ड बाय दैट स्टैंडर्ड। इन प्लेस ऑफ ईयर एन इक्विपमेंट विल लास्ट, द नंबर ऑफ आवर्स दैट एन इक्विपमेंट विल लास्ट इज कैलकुलेटेड। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर जनरेटर की, जनरेटर के लिए नंबर ऑफ ईयर्स की जगह अगर हम नंबर ऑफ आवर्स कि कितने आवर्स वो वर्क कर रहा है उसको यूज़ करें, या कार की अगर हम बात करते हैं, किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल की हम बात करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम बात करें नंबर ऑफ आवर्स के, कितने घंटे वो इसका इंजन वर्क कर रहा है, कितने घंटे वो गाड़ी वो मशीन वर्क कर रही है, तो दैट विल बी मोस्ट यूजफुल। दिस टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज डिवाइडेड बाय द कैपिटल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। दिस कांस्टेंट इज देन मल्टीप्लाइड by the number of actual working hours each year to get the value of depreciation for that year. So, in place of number of hours,
द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो भी टेकन एज मेजर स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बताया कोई मशीन हमने यूज़ की, उससे प्रोडक्शन हो रही है, तो पहले तो हमने कहा कि ईयर्स को काउंट नहीं करना, नंबर ऑफ़ आवर्स को काउंट करना है। हो सकता है नंबर ऑफ़ आवर्स को आप काउंट ना करें, उससे प्रोडक्शन कितनी हो रही है उस प्रोडक्शन को आप काउंट करें कि लेट से 10,000 पीस एक घंटे में बन रहे हैं, तो पर पीस 5 पैसा उसके डेप्रीसिएशन अमाउंट है। सो इस तरीके से आप कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि आप कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से डेप्रीसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद बात आती है ऑपरेशनल कॉस्ट की। अभी तक हम बात कर रहे थे इनिशियल कॉस्ट की, फिर बात आती है यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट की। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है कि किसी भी प्लांट को, किसी भी मशीनरी को ऑपरेशनल बनाने के लिए, मीन्स यूज़ करने के लायक बनाने के लिए और यूज़ करते रहना बनाने के लिए जो कॉस्ट इंक्लूड होती है, दैट इज़ नॉन एज ऑपरेशनल कॉस्ट। सो इट इज़ द एलिमेंट दैट मेक्स द ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए पावर प्लांट। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। बिना फ्यूल के तो कोई मशीनरी वर्क कर ही नहीं सकती, चाहे वो फ्यूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, फ्यूल केमिकल एनर्जी हो, फ्यूल कोई और कोल हो या कुछ भी हो। सो यू हैव टू गिव सम इनपुट। ये जो इनपुट आप देंगे, इनपुट एनर्जी आप देंगे, दैट इज़ नॉन एज फ्यूल। इसके साथ साथ उस मशीनरी को रन करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेबर कॉस्ट इज़ अनदर मेजर कॉस्ट, राइट। इसके साथ साथ जब भी मशीनरी को हम रन करते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट नीड्स सम मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। सो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ स्टोर अदर देन फ्यूल। अब कॉस्ट ऑफ स्टोर अदर देन फ्यूल, राइट। इसके साथ साथ सुपरविजन एंड टैक्सेस इफ एनी। सो ये सारे ऑपरेशनल कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल की, अब हम आपसे कहते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल क्या है? थर्मल पावर प्लांट के अंदर फ्यूल है कोल, राइट। सो इन ए थर्मल पावर प्लांट और इन ए थर्मल स्टेशन, फ्यूल इज द हैवीएस्ट आइटम ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। द सिलेक्शन ऑफ फ्यूल एंड द मैक्सिमम इकोनॉमी इन इट्स यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन थर्मल पावर डिज़ाइन, राइट। कितना? लगभग 55 to 65% जो कॉस्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट का, वो फ्यूल होता है, कोल। थर्मल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ डिज़ायरेबल टू अचीव हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी फॉर द प्लांट सो दैट फ्यूल चार्जेस कैन बी रिड्यूस। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कोल भी आपने वो यूज़ करना है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम, अच्छी एफिशिएंसी है, और साथ में मैक्सिमम एफिशिएंसी तक यूज़ करना है। मीन्स कोल को वेस्ट नहीं करना है, फ्यूल को वेस्ट नहीं करना है, फायर को वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज इफ़ यू आर वेस्टिंग द फ्यूल और फायर तो क्या होगा? एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होने से क्या होगा? आपको फ्यूल पर ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, राइट। सो द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड्स नॉट ओनली इट्स प्राइस एट द साइट ऑफ परचेज बट इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑल्सो। सो ध्यान रखिए, इसीलिए क्या करते हैं? ऑटोमेशन किया जाता है। किसका ऑटोमेशन कर सकते हैं? देखिए, परचेज करने का ऑटोमेशन नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन तो बाय रोड बाय रेल कैसे भी आप करेंगे उसमें क्या ऑटोमेशन नहीं होगा, बट हैंडलिंग कॉस्ट, कोल को हैंडल कैसे किया जाए, यहाँ पर ऑटोमेशन किया जा सकता है। सो दैट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो और रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम हो। सो एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नाउ अगर मैं हाइड्रो प्लांट की बात करता हूँ, हाइड्रो प्लांट में फ्यूल क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, हाइड्रो प्लांट में फ्यूल होता है वाटर, राइट। बिकॉज वाटर इज ओनली फ्यूल विच जनरेट एनर्जी इन द हाइड्रो प्लांट। सो वाटर की जो कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर वाटर की कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो क्या होगा वहाँ पर? इन द हाइड्रो पावर प्लांट एब्सेंस ऑफ फ्यूल कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट। सो इसीलिए वहाँ पर क्या ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी कम है। क्लियर? सो प्लांट हीट रेट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल और बाय एम्प्लॉइंग बेटर थर्मोडायनामिक कंडीशंस इन द पावर प्लांट डिजाइन। ये थर्मल प्लांट के लिए हम बात कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वेरीज विद द फॉलोइंग। कौन कौन से पॉइंट पर वेरी करती है? यूनिट प्राइस ऑफ फ्यूल, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। सो इन तीन पर डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, राइट। इसके साथ साथ क्या है कि अगर इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू नो द मार्केट फ्लक्चुएशन, आपको पता मार्केट में रेट के क्या फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। सो जब फ्यूल सस्ता अवेलेबल है, लेस प्राइस पर अवेलेबल है, तो एट दैट टाइम यू कैन बुक लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट क्या है?
labor means manpower which is required for running the power plant. So, for plant operational, labor cost is another item of operating cost. Maximum labor is needed in a thermal power plant using coal as a fuel. A hydraulic plant or a diesel plant of equal capacity require lesser number of person, right? बिकॉज थर्मल पावर प्लांट में क्या कोल है, कोल की हैंडलिंग है, कोल की प्रिपरेशन है, साइजिंग है, क्रशिंग है, फर्नेस है, ऐश की हैंडलिंग है, तो ये सारे करने के लिए यू नीड सम मैन पावर. बट इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट देयर इज़ ए वाटर इज कमिंग थ्रू पेन स्टॉक. और डीजल पावर प्लांट में क्या डीजल का एक स्टोरेज टैंक है, वहाँ से वो पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है. सो लेस नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ hydraulic as well as diesel power plant, right? In case of automatic power station, the cost of labor is reduced to a great extent. So that's why people are shifting to automation. However, labor cost cannot be completely eliminated even with the fully automatic stations, because some manpower is still required for periodic inspection, maintenance, etc. सो ये पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस जो हैं ये ऑटोमेशन से नहीं हो सकते. मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. सो कितना भी ऑटोमेशन है प्लांट में, कितना भी ऑटोमेटिक प्लांट है, इस काम के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है. इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, राइट. इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्लांट फ्रॉम ब्रेक डाउन, मेंटेनेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, पार्ट खराब हो जाएगा, प्लांट ब्रेक डाउन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है. मेंटेनेंस इंक्लूड्स पीरियोडिक क्लीनिंग, ग्रीसिंग, एडजस्टमेंट एंड ओवरहॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट. द मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस इज ऑल्सो चार्ज अंडर दिस हेड. समटाइम्स क्या होता है, जैसे ग्रीसिंग मैंने कहा, ग्रीसिंग के लिए वी नीड ग्रीस. सो ग्रीस भी जो है मेंटेनेंस चार्ज के अंडर आएगी. समटाइम्स एन आर्बिट्रेरी परसेंटेज इज एज्यूम्ड एज मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज मेंटेनेंस का पता नहीं कितना होगा. सो समटाइम्स इट इज़ एज्यूम लेट्स से 2% और 1% जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है. अ गुड प्लान ऑफ मेंटेनेंस वुड कीप द सेटअप इन डिपेंडेबल कंडीशंस एंड अवॉइड द नेसेसिटी टू मैनी स्टैंड बाय प्लांट्स. मीन्स अगर आप पीरियोडिक मेंटेनेंस करते रहते हैं तो पीरियोडिक मेंटेनेंस से क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा. ब्रेक डाउन ना होने से क्या होगा कि आपको प्लांट को कभी भी स्टॉप नहीं करना पड़ेगा. Repairs are necessitated when the plant breaks down or stop due to fault developing in the mechanism. The repair may be minor, major or periodic overhaul and are charged to the depreciation fund of the equipment. This item of cost is higher for thermal power plant than for hydro due to complex nature of principal equipment and auxiliary in the thermal power plant. So thermal power plant में क्या है कि number of machines ज़्यादा हैं, इसलिए मेंटेनेंस का ज़्यादा होता है, हाइड्रो में कम होती हैं, इसलिए कम होती हैं. इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टोर. मैंने कहा अदर देन फ्यूल, सो यहाँ पर भी हमने लिख दिया अदर देन फ्यूल. यू कैन सी इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ स्टोर अदर देन फ्यूल इंक्लूड सच आर्टिकल एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट, स्मॉल टूल्स, केमिकल्स, पेंट्स एंड अदर थिंग्स. दिस कॉस्ट इज हायर इन थर्मल पावर स्टेशन एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, राइट. फिर हम बात करेंगे सुपरविजन की. इन दिस हेड salary of supervision staff, we include salary of supervision staff. A good supervision is reflected lesser breakdown and extended plant life. जितना अच्छा supervision होगा प्लांट का breakdown कम होगा, लाइफ उतनी ज़्यादा होगी, राइट. Supervising staff include the station superintendent, chief engineer, chemist, engineer, supervisor, store in charges, purchase officer and some other officers, right. Again, thermal stations particularly coal fed have great incidence of this cost than as compared to hydroelectric power plant. टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस में क्या आएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय सिक्योरिटी एक्सेट्रा. इसके बाद हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स टैरिफ की. टैरिफ क्या है, टैरिफ है, टैरिफ इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सोल्ड, राइट. सो इन मार्केट few tariffs are also available which we will discuss, but before that we discuss what are the objective and requirement of tariff. मीन्स टैरिफ की ज़रूरत क्या पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी के रेट सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, अलग अलग तरह के. सो ऑब्जेक्टिव है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पावर प्लांट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो उसका उसको रिकवर करने के लिए.
recovery of cost of operational, supplier and maintenance, recovery of cost of material, equipment and collection cost, and net ROI, return on investment. अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, सो क्या कैसा होना चाहिए टैरिफ सिस्टम? ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट, प्रोवाइड लोअर रेट फॉर हायर कंजप्शन. अब पावर क्या होती है? P इजकल टू VI cos phi, राइट. सो इसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है. यूनिफॉर्म ओवर लार्ज पॉपुलेशन, एनकरेज कंज्यूमर हैविंग हायर लोड फैक्टर, कंसीडर मैक्सिमम डिमांड, इंसेंटिव फॉर यूजिंग ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम्स, राइट, लेस चार्ज फॉर पावर कनेक्शंस एंड पेनल्टी फॉर लो पावर फैक्टर. अब जनरल फॉर्म ऑफ टैरिफ, जो टैरिफ अवेलेबल है स्टैंडर्ड टैरिफ है Z इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C, वेयर Z इज़ अ टोटल बिल, जो बिल आता है हमारे पास, X मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट, Y एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh, रेट A इज़ द रेट पर किलोवाट, B इज़ द एनर्जी रेट पर किलोवाट kWh एंड C इज़ ए कॉन्स्टेंट चार्ज. सो तीनों का तरीके से हो सकता है. अब देयर आर सम टाइप्स ऑफ टैरिफ्स आर अवेलेबल: फ्लैट रेट टैरिफ, सिंपल टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ. समटाइम टू पार्ट टैरिफ इज ऑल्सो नोन एज हॉपकिंसन डिमांड रेट एंड थ्री पार्ट टैरिफ विच इज ऑल्सो नोन एज डोहर्टी रेट सिस्टम. अब फ्लैट रेट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ए टाइप इन विच डिफरेंट कंज्यूमर हैव डिफरेंट रेट. और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज कंज्यूमर. मीन्स फ्लैट बता दिया कि कितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें आपको एक इस अमाउंट से, मीन्स लेट से 5 रुपीज़ पर यूनिट आपको चार्ज देना है. अब इसमें क्या है कि लार्ज कंज्यूमर आर एनकरेज की, जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कम यूज़ कर रहा है उसको प्रॉब्लम है. दिस टैरिफ इज सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट. डिफरेंट एनर्जी मीटर्स आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एट कंज्यूमर प्रेमिसेस, राइट. दिस सप्लायर doesn't get any return for connection given to consumer if he is not using any electricity. मीन्स अगर एक महीने में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की उसके लिए उसको कुछ भी नहीं देना. इस पर हम बात करते हैं सिंपल टैरिफ की. सिंपल टैरिफ क्या है? द टैरिफ विच हैज़ ए फिक्स रेट पर यूनिट कंज्यूम. बिल्कुल सिंपल, राइट. दिस इज अ सिंपलेस्ट टैरिफ. इवन अ सिंपल कंज्यूमर कैन अंडरस्टैंड इट. उसको ये पता है कि मुझे तो ये हिसाब से पैसा देना है. देर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्मॉल बिग कंज्यूमर एंड कॉस्ट जनरली जो है पर यूनिट ये हाई होती है. ब्लॉक रेट की अगर हम बात करें, ब्लॉक रेट में क्या होता है कि टोटल एनर्जी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि लेट से पहले 100 यूनिट के लिए आपने ये खर्च पैसे देने हैं, नेक्स्ट 100 यूनिट के हिसाब से देने हैं, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए हिसाब से देने हैं. सो ब्लॉक्स बना दिए हैं. एडवांटेज क्या है? द कंज्यूमर आर एनकरेज टू कंज्यूम मोर एनर्जी. दिस इंक्रीज लोड फैक्टर ऑन द सिस्टम एंड कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज रिड्यूस. और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें डिमांड को कंसीडर नहीं किया गया है, राइट. इसके बाद है टू पार्ट सिस्टम. टू पार्ट सिस्टम में क्या है कि कंज्यूमर के लिए टू पार्ट इसमें कंसीडर किए गए हैं. मैंने आपको जेड पहले बताया, 3 पार्ट बताया, AX प्लस BY प्लस C, तो 2 पार्ट यहाँ पर उसमें से लिए जाते हैं, AX प्लस BY. दिस टैरिफ इज़ वेरी सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हु हैव हायर डिमांड एंड इट टेक कंसिडरेशन ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. लेकिन डिसएडवांटेज की बात अगर हम करते हैं तो डिसएडवांटेज देखिए, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर टू बी इंस्टॉल्ड एट प्रेमिसेस, कि डिमांड कितनी है, क्योंकि हमने कहा AX प्लस BY, तो डिमांड कितनी है, डिमांड के लिए अलग मीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट. एंड कंज्यूमर हैज़ टू पे सम फिक्स अमाउंट पर किलोवाट, वो यूज़ करे या ना करे, बिकॉज उसका कनेक्शन कितने किलोवाट का है उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा. एंड लास्ट जो है दैट इज़ 3 पार्ट सिस्टम. लास्ट इज 3 पार्ट सिस्टम. तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट. Z इजकल टू AX प्लस BY प्लस C, राइट. फर्स्ट पार्ट में क्या है? इट इज़ पर किलोवाट. सेकेंड पार्ट है पर यूनिट kWh एंड थर्ड इज़ अ फिक्स डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट. अब इसमें क्या है कि आप यूज़ करें या ना करें आपको कुछ ना कुछ पार्ट देना पड़ेगा जस्ट टू कैलकुलेट द depreciation part. So this is all about today's lecture. Thank you very much friends.